without expectation of result, while karma sannyas is renunciation of actions. Both lead to liberation, but karma yoga is better than karma sannyas. Karma sannyas is to escape from all types of karmas, to avoid reactions of karma phal. One may think that if one does not engage himself in any karma, he will be safe and may not have to bind with paap or punya. Whereas karma yoga is doing prescribed duties following varnashram dharma. When one follows varnashram dharma without being attached, that is doing nishkam karma, gradually heart becomes pure and one can attain higher platform of bhakti. But karma sannyasi will not get this opportunity to purify himself and attain higher platforms. One whose heart is not pure and takes sannyas is not as eligible because externally he may be detached, but internally he is prone to be attracted towards sense gratification and may fall down. Example of Maharishi Vishwamitra can be quoted here, who in spite of being sannyasi for years failed to control his senses after seeing Menka. In Bhagavad Gita, we have learned that controlling senses on our own endeavor is not possible. Again, example of Vishwamitra. These can be controlled only if we put them in the service of Lord by performing actions for pleasure of Lord. Again, example here is a Yamunacharya. Devotees restrain themselves from performing any actions which take them away from Lord. We can compare here an example of tortoise, which when attacked by outer senses, and restrains its senses. Even restrained actions are also difficult as taste of sense objects still remain. Like a patient may be advised to restrain from some food, but taste for same remains. On higher platform, this lower taste goes away. Krishna consciousness is a higher platform. Krishna consciousness is like a hungry man satisfied by sufficient nutritious eatables. Example of Amrish Maharaj can be given here, who conquered Durvasa Muni because of Krishna consciousness. Another example is of Vilas Thakur, who overcame his senses by performing actions in service of Lord, but at the same time, powerful demigod Shiva was agitated by Parvati and Kartikeya was born. Living entities can never be without desires, and as such act to fulfill their desires. These desires are to be dovetailed in the order to not to get attached to the results. As such, by performing such actions, one slowly moves to state of Krishna consciousness. Example of Arjuna can be cited here, who fought for satisfaction of Krishna, although he had no desire to fight. To conclude, Krishna says that it is better to perform actions without getting attached to result than not to act at all. But actions performed in Krishna consciousness are better than the renunciations of actions. हरे कृष्ण। निमेश मेहता, आपका जो हिंदी में ना, एक बार आप भी पढ़ दीजिए प्रभु। निमेश प्रभु। हरे कृष्ण पढ़ रहा हूँ, सुन रहे हैं? हाँ, हरे कृष्णा सुना दे रहा प्रोजेक्ट, बोलिए। हाँ, श्लोक 58 में कहा गया कि एक कर्म योगी और एक कर्मयोग संन्यास योग, कर्मयोग को संन्यास योग से ऊपर बताया गया है, क्योंकि इंद्रियों की तुलना एक विषैले सर्प से की गई है। वो अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहता है, परंतु एक योगी तथा भक्त को एक सफेरे की भांति उसे वश में करने के लिए प्रबल होना चाहिए, क्योंकि कर्म संन्यास में कुछ ना करने की तुलना में कर्मयोग के माध्यम से कृष्ण भावनामृत होकर कुछ करना वह उत्तम है। जिस प्रकार एक कछुआ समय आने पे अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेता है और फिर विशिष्ट उद्देश्य से उसे प्रकट करता है, इसी प्रकार कृष्ण भावनाभित व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं।
अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। 59 में कहा गया है कि इसलिए अज्ञानी व्यक्ति के लिए अष्टांग योग विधि बताई गई है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहार, ध्यान आदि सम्मिलित है। पर जिसने कृष्णा भावनामृत में प्रगति की है उसे अष्टांग योग की जरूरत नहीं है। कहा गया कि अनेक विद्वान ऋषि इंद्रियों को वश में करने के प्रयत्न करते हैं, पर विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। जैसे अम्बरीश महाराज भक्ति के माध्यम से महर्षि दुर्वासा मुनि पर भी विजय पा सके थे। श्लोक 61 में कहा गया है कि जब तक कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। दुर्वासा मुनि महर्षि होने के पश्चात भी महाराजा अम्बरीश पे क्रुद्ध हो गए, जिससे अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी तरफ महाराजा मुनि के समान योगी न होते हुए भी उनके क्रोध को सह लिए, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे। श्लोक 62 में बताया जा रहा है, इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य कृष्णा भावनामृत नहीं है वे अपनी इंद्रिय विषय के चिंतन में रहते हैं। इस जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषय के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने उन्हें विषय भोग के लिए उत्तेजित किया, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशिष्ट कृष्ण भक्ति से वो खरे उतरे। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रिय भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा पॉइंट है इन लोगों का, तो हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अच्छा अभी माता जी का ग्रुप मदन मोहन को आपको शायद म्यूट करना पड़ेगा। मदन मोहन को आपको म्यूट करना पड़ेगा ये अपनी आवाज। हाँ माता जी में कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? किरण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा किरण माता जी। हाँ आप करिए ना। आप पढ़िए माता जी। हम पढ़े। आप करें ना तो आप करिए ना। आप करिए। आप करिए माता जी। इतना नंबर होने की जरूरत नहीं है, कोई एक कर दीजिए। कृष्णा our sense। अर्जुन के पूछने पर बुद्धि के क्या लक्षण है भगवान बताते हैं कि उसके लिए आवश्यक है कि हमारी इंद्रियों को उसी तरह वश करना है जैसे सपेरा सांप को नियंत्रण करता है। जैसे पूर्व अपनी इंद्रियों को समेट कर रखता है, केवल आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलता है। वैसे ही हमें कृष्ण के लिए हमारी इंद्रियों को पूर्ण रूप से बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए। इसके लिए आरंभ में कुछ नियम और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा इंद्रियों को वश करना अति कठिन है। जैसे रोगी व्यक्ति पर भोजन का प्रतिबंध लगाने पर भी उसकी रुचि बनी रहती है। जैसे जैसे कृष्णा भावनामृत का ज्ञान होता है वैसे इंद्रियों का संयम करना अत्यंत सरल हो जाता है। विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की, फिर भी मेनका को देख वे अपना संयम खो बैठे। इधर अम्बरीश महाराज ने भक्ति भाव के कारण दुर्वासा जैसे महान ऋषि के गर्वपूर्ण क्रोध पर विजय पाई। उनका उदाहरण सदैव अनुकरणीय है। इन्होंने अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। जिस तरह जलती अग्नि कक्ष के अंदर की सारी वस्तु को भस्म कर देती है, वैसे ही जितना जितना हम भगवान के प्रति अनुरक्त होंगे
हमारे अंदर स्थित विष्णु हमारे सारे कलमश को दूर कर देंगे। इंद्रियां कभी निष्क्रिय नहीं रह सकती है। आवश्यकता है उन्हें सही जगह लगाने की। नहीं तो वे भौतिक वस्तु का चिंतन करेगी, फिर उसे पाने की इच्छा और बाधा होने पर क्रोध, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ब्रह्मा जी भी इससे नहीं बच पाए हैं। शिव जी भी पार्वती की काम वासना का शिकार हुए। फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। कोई हरिदास ठाकुर को माया ने कई तरह से मोहित करने का प्रयास किया, पर वो निष्फल रही। भगवान के प्रति सेवा भाव हृदय सुख का दमन वही कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। उनको प्रसन्न करी वो स्वयं प्रसन्न हो सकता है। तो वो भक्ति पूर्वक भगवान को भेंट कर सब कुछ ग्रहण करता है। भूख लगाकर नित नए नए प्रसाद ग्रहण करता है, अच्छे वस्त्र पहनता है। और अभक्त कितने रूप से त्याग करते हैं पर असंतुष्टि रह जाते हैं। पर भक्त घर में भगवान को केंद्र कर तब काम करते हैं, अहंकार और काम भावना नहीं रह जाती है, निर्मम और निरंकार हो जाते हैं, केवल सेवा का भाव ही रह जाता है। तो सारे काम कृष्ण के आदेशानुसार करता है। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, पर कृष्ण के आदेशानुसार जी भर लड़ा, वैसे ही भक्त कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अवांछित कार्य भी करता है, तो शुभ अशुभ से ऊपर उठ जाता है। इस तरह से भगवान की अहेतु की कृपा मिलती है, उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो सब कुछ ग्रहण करता है पर भविष्य के भाव से नहीं। तो व्रत करता है पर मन में कंट्रोल लेता है। ऐसी स्थिति में ही हम मन को भगवान में लगा सकते हैं। जिसका मन भगवान में है वो संतुष्ट और प्रसन्न चेतसा रहता है। नहीं तो कैसे संतुष्ट रहेगा, वह आत्माराम बन जाता है। जो लोग मनमाना काम करते हुए इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, कृष्ण भक्त सदैव स्वतंत्र रहते हैं। उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो गुरु के आदेशानुसार प्लान करके चलता है। प्लान नहीं तो माया देवी का प्लान बना का शिकार होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। मन में इच्छा तो आती है पर उससे विचलित नहीं होता है। जैसे बारिश में नदियों से आने वाले पानी से समुद्र प्रभावित नहीं होता है, उसकी बुद्धि दिव्य हो जाती है। मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है। आत्म साक्षरता का पथ उसके लिए दुख की तरह और भौतिक विषय का प्रयास उसके रात्रि के समान होता है। नियम में मेरे सेवक श्रीलंका देहात बुद्धि से रहित हो जाता है। तो यही कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है। यहाँ जीवन का एक नया मार्ग होगा, जीवन अंत नहीं पर सही जीवन का आरंभ होगा। यहाँ मनुष्य अपने में आत्मतुष्ट आत्माराम के साथ होगा। तो वो होगा गोविंद के शरण में, जिन्हें कहा जाता है कि इंद्रियों को आनंद देने वाले। शूद्र जानता है कि संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने ही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। इस तरह भगवान और भक्त में आदान प्रदान होता है। उनका भी हम लोग धन्यवाद देंगे हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। कहाँ तक हो गया था हमारा? प्रभु थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था इसमें ना, हाँ प्रेजेंटेशन में। हाँ वो जो माता जी वाला टॉपिक था सेंसेस के ऊपर, हाँ वो तो ठीक था मेरे को प्रभु। जो आपने टॉपिक हमें दिया था प्रभु जी इसको, हाँ इसमें प्रभु कर्म संन्यास के रेलिवेंट बहुत ज्यादा था नहीं इसमें। या तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलती हुई, तो हमने जो भी प्रेजेंटेशन किया ना प्रभु उसको थोड़ा सा उसके साथ लिंक कर दिया, बट इट वाज मोर और लेस अबाउट सेंसेस। और इसमें सुपियरिटी और उसका कर्मयोग कन्यास कर्म संन्यास की सुपीरियोरिटी जो है थी, उसके बारे में प्रभु कुछ था नहीं इसमें रेलिवेंट। कर्मयोग थोड़ा सा वो एक्चुअली बताइए ना प्रभु, या तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलती है या फिर तो कर्मयोग और कर्म संन्यास में एक मेन पॉइंट जो मैं सुनना चाह रहा था वो आप लोगों ने वैसे कवर किया है। वो क्या है कि जब व्यक्ति कर्म संन्यास ले लेता है तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करके हृदय को शुद्ध करने की अपॉर्चुनिटी। तो वो व्यक्ति अगर मान लीजिए उसका हृदय शुद्ध नहीं है, इनकेस हृदय शुद्ध होने का मतलब क्या है? अगर आपको ग्राफ से याद होगा, मैंने बताया था हृदय शुद्ध मतलब कर्तव्य अभिमान से मुक्ति। तो अगर उसी कर्तव्य अभिमान से मुक्ति नहीं हुई है और वो अभी वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता है, तो क्या होगा? फिर उसके हृदय में जो कल्मश हैं वो उसको और डिग्रेड करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे श्लोक आ रहे हैं ना, ध्याय तो वैसे पुंसाम संग से तो उपजाते संगा संजाते कामा, तो उसका ध्यान फिर आध्यात्मिक चीजों में नहीं जाएगा, उसका ध्यान कहाँ जाएगा? इंद्रिय वश इंद्रियों होकर विषय जाएगा। में ही रहेगा। हाँ,
तो उसकी वजह से क्या होगा, वो व्यक्ति फर्दर डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए कर्म योग को बेटर क्यों बोला गया है, क्योंकि कर्म योगी पास एक अस्त्र है। वो अस्त्र क्या है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करके हृदय को शुद्ध करना, जो कि कर्म सन्यासी के पास नहीं है, इसलिए भगवान उसको श्रेष्ठ कहते हैं। ठीक है ना। इसमें अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि आ रहे एग्जाम्पल में प्रभु जी। देखिए अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि है, पर उसमें से आप क्या पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सही बताएं तो जो ये अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि वाला जो पॉइंट है, ये भक्ति वाला पॉइंट है। और अगर आपको याद होगा, मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रभुपाद जी कर्मयोग को भक्ति जैसा ही बताते हैं, लेकिन कर्मयोग भक्ति योग नहीं है। क्योंकि कर्मयोग में व्यक्ति का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने ये जो तात्पर्य लिखे हैं नए लोगों के लिए लिखे हुए हैं, ताकि जो लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो, वरना वो कर्मयोग करना चालू कर देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कर्मयोग को भी भक्ति योग जैसे ही बताया है, किंतु कर्मयोग और भक्ति योग में अंतर है। क्या ये अंतर है कि कर्मयोग में व्यक्ति का लक्ष्य कृष्ण नहीं है, कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, लेकिन एक भक्ति है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो एकदम रेलेवेंट नहीं है, बट ठीक है, आप लोगों ने पर्पज से लिया है, लेकिन एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तीनों अलग अलग है प्रभु जी, कर्म योग अलग है, भक्ति अलग है, और संन्यास योग अलग है। कर्म योगी भक्ति नहीं हो सकता, भक्त नहीं हो सकता क्या? अगर वो भक्ति कर रहा है तो वो कर्मयोगी नहीं है, फिर वो भक्ति योगी कहलाता है, कर्मयोगी नहीं कहलाता है। मतलब कर्म योगी के अंदर भी भक्त तो रहते हैं ना। जो भक्त है वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है भक्ति में प्रगति के लिए। हाँ ठीक है प्रभु, हरि बोल। ठीक है, तो वो हरे कृष्णा। दोनों प्रभु कर्म संन्यास कर्म योग दोनों में लिबरेशन तक ले जाते हैं प्रभु, ब्रह्म तक। हाँ ले जा सकते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों के दोनों लिबरेशन, मतलब इस स्तर तक ले जा सकते हैं आपको कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। किंतु कर्म संन्यास के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ा हाई है। वो क्या है, कर्तव्य अभिमान से मुक्ति की क्वालिफिकेशन है। तो अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो व्यक्ति के पास डिग्रेड होने का चांस रहता है, तो उसमें रिस्क ज्यादा है, कर्मयोग में रिस्क कम है। तो कर्म संन्यास मतलब ज्ञान योगी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कर्म संन्यास मतलब ज्ञान योग, सिंपल। क्लियर हुआ सबको? ठीक है प्रभु। तो प्रभु जी ये हमको लग रहा कर्म संन्यास 3rd चैप्टर का तो नहीं है कहीं है? नहीं देखिए, सेकंड चैप्टर में भी आता है, 3rd चैप्टर में भी आता है। ये इसका डिस्कशन कई बार होगा, 5वें चैप्टर तक होगा इसका डिस्कशन। तो भगवान बार बार डिस्कस करते हैं उसको क्लियर करने के लिए कि कैसे कर्मयोग करने में रिस्क नहीं है, कर्म संन्यास लेने में रिस्क है। ये 5वें चैप्टर तक भगवान रिपीट करें। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? श्लोक 9। श्लोक 9। लेकिन सब दो भक्तों क्लियर है ना। देखिए ये क्लियर नहीं होगा तो आपको भगवत गीता सब एक जैसी दिखाई पड़ेगी। इसलिए पहले भी हमने क्लियरली बोला था कि जो मैंने चार्ट दिया था उसको रट लेना है। आपको याद है ग्राफ दिखाया था, वो ग्राफ को रट लेना है। प्रभु जी हरि बोल। तो समझ में नहीं आएगा। हाँ बोलिए। प्रभु जी मेरा कट गए थे, थोड़ा सा जिस्ट में बता देंगे प्रभु, हम आउट हो गए थे प्रभु। ठीक है, अभी हाँ कोई और बताएगा मैंने क्या समझाया था? हाँ बोलिए, स्नेहा माता जी बोलिए। The difference between karma yoga and karma sannyas is that when one takes karma sannyas, माता जी हिंदी में बोलिए ताकि उनको समझ में आए, शाम सुंदर को। कर्म योग और कर्म संन्यास के बीच का अंतर ये है कि जब एक व्यक्ति कर्म संन्यास लेता है तो वो वर्णाश्रम धर्म के पालन का अवसर खो देता है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का व्यक्ति अगर पालन करता है तो
उसकी सेंसेस, माइंड और हार्ट प्योरीफाई हो सकती हैं, पर क्योंकि ये अवसर वो खो देता है तो उसके फॉल होने का, उसके डिग्रेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इसीलिए उसका माइंड इज ड्रॉन टूवर्ड्स सेंस ऑब्जेक्ट्स, वो आकर्षित होता है सेंस ऑब्जेक्ट्स से। जबकि कर्म योगी के पास ये वर्णाश्रम धर्म का अस्त्र रहता है, वेपन रहता है, और उसका गोल कर्म योगी का गोल ये नहीं रहता कि कृष्ण मेरा गोल है, पर वो परफॉर्म करता है निष्काम कर्म योग, जिसके कारण वो डूअरशिप में से निकल जाता है। जबकि कर्तव्य अभिमान से निकल जाता है, जबकि कर्म सन्यासी जो होता है वो मैक्सिमम इस लेवल तक पहुंच सकता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, पर जरूरी नहीं है कि वो कर्तव्य अभिमान से आजाद हो। इसलिए उसके पाथ पे, उसके जो पाथ वो फॉलो करता है वो बहुत रिस्की है। सब सही था, एंड में थोड़ा गड़बड़ था। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को दोबारा मैं दिखाता हूँ, वो चार्ट दिखाता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा। मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन उतना भी कठिन नहीं है, फिर भी समझाना पड़ेगा। ये सबको दिखाई दे रहा है? हरि बोल। यस प्रभु। अब देखिए, कर्म संन्यास मतलब ये ज्ञान योग की बात हो रही है। ये कर्म योग है, पहले सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग। अभी कर्म योग में क्या है, व्यक्ति मात्र वर्णाश्रम धर्म के पालन के प्रति निष्ठावान है, तो वर्णाश्रम धर्म के पालन के कारण उसकी वृद्धि होती रहती है चेतना की। तो व्यक्ति पहले भले उसके हृदय में क्या हो, कर्म फल भोगने की इच्छा हो, तो हृदय पवित्र होगा। तो हमारा माउस देखिए, मार्कर जो हमारा जा रहा है माउस का, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, उस स्तर पे पहुंच जाएगा जहां पर उसका हृदय में कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं है, तो यहां तक पहुंच गया। फिर क्या होगा, फिर उसका हृदय और शुद्ध होगा, तो ये व्यक्ति कहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। मतलब कर्तव्य अभिमान से मुक्ति हो जाएगी उसकी, और फिर वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है। मतलब कि रियलाइज कर सकता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अभी ज्ञान योगी के क्या प्रॉब्लम है, जो ये कर्म सन्यासी है या फिर ज्ञान योगी जिसको कहते हैं, वो मान लीजिए वो सोच रहा है कि मेरा हृदय कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो गया है, लेकिन अभी सर्टिफिकेट तो कहीं मिलता नहीं है कि आप कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो गए। तो मान लीजिए वो इस स्तर पे नहीं है, इस स्तर पे है। जब इस स्तर पे है तो ना ही वो कर्मयोग कर पा रहा है, ठीक है, और वो ज्ञान योग के लायक नहीं है। तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जब हृदय में ब्रह्म का ऊपर ध्यान करने का प्रयास करता है, तो ब्रह्म पे ध्यान नहीं जाता, ध्यान कहाँ जाता है, ध्यान इंद्रिय भोगों पे जाता है। इंद्रिय भोगों में ध्यान जाने के बाद क्या होगा, उसका उत्थान नहीं होगा, उसका पतन होता जाएगा। तो ये ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, तो इसमें रिस्क है। लेकिन कर्मयोग में रिस्क क्यों नहीं है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के पालन से व्यक्ति हमेशा ऊपर उठ सकता है। ठीक है, निष्काम कर्म, कल को उसको पता लगता है वो निष्काम कर्मयोग के लायक नहीं है, तो सकाम कर्मयोग कर लेगा कम से कम। ये तो ना निष्काम कर्मयोग कर सकता है ना सकाम कर्मयोग कर सकता है, बल्कि क्या हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा। मेरा हुआ प्रभु जी, मेरी गलती एक थी ना कि मैंने ये कहा कि दोनों इस लेवल तक पहुंचते हैं कि दे आर नॉट दिस बॉडी बट सोल, वहां मेरी गलती थी ना प्रभु जी। नहीं, आपने शायद एक में बोला था, अभी पता नहीं आपने इंटेंशनली बोला या मुंह से निकल गया। आपने हाँ। बोला था कि एक में आप ब्रह्म तक पहुंचते हैं, दूसरे में नहीं पहुंचते।
हाँ हाँ, ऐसा ही बोला था। लेकिन दोनों ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं अगर वो ठीक से पालन करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के पास वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस ही खत्म हो जाती है उसके पास। अगर उसका हृदय पवित्र नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो प्रोसेस खत्म हो जाती है। ये किसके जैसा, देखो आपको उदाहरण देते हैं। उदाहरण किसका है? मान लीजिए कोई लड़का वो इंजीनियरिंग करने के लायक नहीं है, तो ज्यादा मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, इंजीनियरिंग कोई चीज समझ में नहीं आती है, उसके माता पिता क्या करते हैं, उसको डोनेशन देकर जबरदस्ती इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा देते हैं। तो मान लीजिए वो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं घुसा होता, तो कम से कम कुछ और कर रहा होता, मान लीजिए कॉमर्स साइड से होता या किसी और साइड से होता, कुछ तो प्रगति कर रहा होता ना। अभी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस गया है, उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या चल रहा है, सब ऊपर से जाता है उसका, नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो फिर वहां पे रहते रहते डिप्रेशन में चला जाएगा, उल्टा सीधा काम करेगा, तो वो ना घर का ना घाट का वैसा हो जाएगा। तो कर्म संन्यास में ये रिस्क है कि व्यक्ति अगर उस स्तर पे नहीं है, तो ना वहां का रहा और ना यहाँ का रहा, फिर वो क्या होगा, उसमें पतन हो जाएगा। वो बार बार क्या करेगा, इंद्रिय विषय भोग के बारे में सोचता रहेगा और फिर वो पतन होता जाएगा उसका। तो ये कर्म संन्यास में क्या है, रिस्क है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कर्मयोग करना चाहिए, कर्म संन्यास नहीं लेना चाहिए। क्लियर हुआ अभी सबको? हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ बोलिए। जैसे जो कर्म योगी है वो सकाम कर्म करके निष्काम कर्म योग में जब पहुंचता है, तो इसका मतलब फिर वो भक्त बन गया? नहीं, ये मैंने पहले बताया था, निष्काम कर्मयोग भक्ति योग नहीं है। निष्काम कर्मयोग का लक्ष्य ब्रह्म है, उसका लक्ष्य कृष्ण नहीं है। कृष्ण का उसका लक्ष्य है, तो फिर वो कर्मयोगी नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ प्रभु जी निष्काम कर्म, प्रभु जी निष्काम कर्म करके मैक्सिमम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। बस नहीं तो ठीक, ब्रह्म तक ठीक। पहुंच सकते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम कर्म योगी भक्त बनने के प्रोसेस क्या है प्रभु जी? हाँ, निष्काम कर्म योगी भक्त बनने के प्रोसेस। देखिए निष्काम कर्मयोगी का प्रोसेस क्या है बताइए, मेरे को ये बताइए पहले, निष्काम कर्मयोगी का प्रोसेस क्या है? तो आवाज नहीं आ रही आपकी। कर्तव्य अभिमान से मुक्ति, एक मिनट रुकिए। और ब्रह्म को प्राप्त करना। नहीं, प्रोसेस का मतलब क्रिया क्या है, वो करता क्या है, वो तो उसका लक्ष्य हो गया। हाँ बोलिए, तो आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु कर्म के फल को नहीं भोगना, जो वो कर्म कर रहे हैं उसको। सबका गोलमाल चल रहा है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, निष्काम कर्म योग या कर्म योग जो है उसको सबसे पहले हम लोग सकाम कर्म से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सिंफुल लाइफ वो क्रॉस कर चुका होता है और वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करता है, और उसे किसी भी जैसे शास्त्रों में लिखा है उसको फॉलो करता है। वर्णाश्रम धर्म के पालन को कर्मयोग कहते हैं, सिंपल। वो व्यक्ति श्रवण कीर्तन नहीं करता है, वो श्रवण कीर्तन करता है तो वो भक्ति हो जाता है। क्लियर हुआ सबको? यस प्रभु। अगर कोई जप कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो कर्मयोग नहीं है, वो भक्ति योग है। ठीक है, सब लोग समझ लिए? ठीक है, नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा भक्ति शास्त्री कोर्स हो जाएगा। फिर लोग पूछेंगे कर्मयोग और भक्ति योग क्या है, बोलेंगे आप बोलेंगे एक जैसा है, तो लोग बोलेंगे अरे कौन से टीचर ने पढ़ाया था आपको? कर्म फल को भोगने वाले को सकाम कर्मयोगी कहते हैं, सॉरी सकाम कर्मयोगी कहते हैं। कर्म फल को भोगने की इच्छा रहती। सबसे पहले आपको कर्मयोग और भक्ति योग में अंदर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। यस प्रभु। जो भक्ति कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, भगवान की विग्रह की पूजा कर रहा है, वो भक्ति योगी है। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है वो कर्म योगी है। और जो कर्म योगी है उसका लक्ष्य कृष्ण को प्राप्ति करना नहीं है, वो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है बस। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है। अब उसमें आता है सकाम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी। सकाम कर्मयोगी है जिसके अंदर कर्म फल भोगने की इच्छा होती है, और जिसके अंदर नहीं होती है वो निष्काम कर्मयोगी होता है।
पर प्रोसेस एक ही है दोनों की। क्या प्रोसेस है? वर्णाश्रम धर्म का पालन। ठीक है, अभी समझ में आया? अभी तो कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी से कर्म संन्यास नहीं, दूसरे पे डिपेंडेंट भी तो रहना पड़ता है ना, अपना कर्म नहीं करेगा तो। वो क्या करता है? वो भिक्षा मांग के खाता है बस, और वो कुछ नहीं करता। वो अपना, वो ज्ञान योगी। ज्ञान योगी क्या करता है? ज्ञान योगी मात्र ज्ञान शास्त्र, ज्ञान शास्त्र कौन से शास्त्र होते हैं? वो शास्त्र जो बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, उसको ज्ञान शास्त्र कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु, निष्काम कर्म जो करता है प्रभु, तो निष्काम कर्म का अर्थ ये हुआ कि हम जो भी कर्म करते हैं वो अपने भगवान के अर्पण कर देते हैं, तो अपने लिए नहीं करते हैं। इस कर्म से हम लोग भगवान के लिए नहीं, हाँ, ऊपर वाले के लिए। आपको जहाँ बोल रहे भगवान को अर्पण कर देते हैं, वो भगवान कौन है? तो कृष्ण को ही अर्पण कर देते हैं। मैंने कोई भी कर्म, हम जो भी काम करते हैं या धन कमा रहे हैं, अगर हम कृष्ण की सेवा में लगा दे रहे हैं, तो उस धन को तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके कर्म फल से छूट जाएगा, तो हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। तो एक तरफ से तो निष्काम कर्म वाले भी तो भगवान की भक्ति हुई ना प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। एक मिनट रुकिए। हरे कृष्णा। तारकनाथ प्रभु, सुनाई पड़ रहा है आपको? हाँ प्रभु, सुनाई पड़ रहा है। हाँ, तो अगर कृष्ण के लिए अर्पित होता है तो फिर वो कर्मयोग नहीं है। कर्मयोगी को ये पता नहीं है कि भगवान कौन है। तो निष्काम कर्म करेगा कैसे प्रभु, जब भगवान उसको मालूम ही नहीं रहेगा? तो उसको ये तो पता है कोई ऊपर वाला है। आपने देखा नहीं, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि हम ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर वो ऊपर वाले के लिए कर रहा है, अगर मान लीजिए प्रभु ऊपर वाले के लिए कोई भी कर्म कर रहा है, तो वो तो धन का जो उपयोग कर रहा है, तो उसमें तो पाप पुण्य का फल आ जाएगा ना, तो निष्काम होगा कैसे बिना कृष्ण को अर्पण किए? कृष्ण वो अलाउ करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई तदर्थम कर्म कौन थे, अगर आप ऊपर वाले के लिए कर्म कर रहे हैं, किसके अनुसार? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसमें पाप नहीं होता है। पाप कब होता है? जब वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं। अच्छा, लेकिन पुण्य तो होगा ना प्रभु? हाँ, पुण्य मिलेगा, उसको पुण्य मिलता है। लेकिन अगर वो कभी पुण्य को नहीं चाहता है, पुण्य उसके पास आएगा, लेकिन वो पुण्य को भोगना नहीं चाहता है, तो उसको निष्काम कर्मयोगी कहते हैं। उसके अंदर अगर भोगने की इच्छा नहीं है, हाँ, तो भोगने की इच्छा नहीं है, एक कैसे हो सकता है प्रभु? अगर हम कोई भी कर्म करेंगे तो उसका दो रीजन होगा, चाहे पाप मिलेगा चाहे पुण्य मिलेगा। अगर मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ, अगर पुण्य मिलेगा तो मेरे को तो भोगना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई और प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं है। भोगना नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको बोल रहे हैं यमराज जी का स्वर्ग जाइए, और आप मना कर देते हैं हमको स्वर्ग नहीं जाना है, तो जबरदस्ती आपको यमराज जी बंदी बना के स्वर्ग नहीं भेजेंगे। अच्छा, लेकिन मैं तो ऐसे ही सुना था कि प्रभु जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको भोगना हो, चाहे पुण्य हो चाहे पाप, आपको भोगना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा, मैं ऐसा सुना था। हाँ, तो अभी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है? तो बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर आपकी पुण्य को भोगने की इच्छा नहीं है तो उस कर्म से पुण्य नहीं मिलता है। जब भोगने की इच्छा के कारण ही व्यक्ति को कोई शरीर प्राप्त होता है। जब भोगने की इच्छा नहीं तो शरीर प्राप्त नहीं होता है। वो अपने ऊपर निर्भर करता है। अगला शरीर दो चीजों पर निर्भर करता है, पुण्य पाप और इच्छा। इसमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो वो अगला शरीर नहीं मिलेगा। ठीक है? ठीक है प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जैसे आप बोलिए बोल रहे महाराज। निष्काम कर्म कर रहा है, जैसे सोचिए कोई काम कर रहा है तो उसको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा तो अगर निष्काम कर्म योगी है तो वो किस तरह से अपना प्रॉफिट का यूज करे? वो अगर वो अपना कृष्ण की वो व्यक्ति ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे है, इसलिए वो धार्मिक तरीके से उसको करेगा। जैसे उसको बोला गया है कि आपको 8 से 10% डोनेशन देना है ग्रस्त को, तो वो किसी धार्मिक कार्य में शास्त्रों के अनुसार दान देगा। और बाकी जो धर्म के अनुसार जो भी उसको बोला गया है कि धर्म के अनुसार आप कैसे कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं वर्णाश्रम धर्म के पालन के लिए, तो वो पालन यूज करेगा उसको। तो इसका तो उसको पुण्य मिलेगा इस तरह सेम से चीज अगर वो कर रहा है। मैंने अभी क्या बोला, पुण्य पुण्य आपको कब प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है? धर्म करने से। एक और बात बोली थी अभी मैंने, तारक मेहता प्रभु को बोली थी, तो तारक प्रभु को बोली थी, जब क्या बोला था मैंने? इच्छा हो पुण्य प्राप्त करने की, उससे तभी हाँ। तब मिलता आप है। उसको इच्छा भोगने का रहेगा तब आप भोगेंगे। हाँ, जब भोगने की इच्छा नहीं रहेगी तो क्यों मिलेगा आपको? देखिए कृष्ण ये समझाते हैं कि बंधन का कारण पुण्य और पाप नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। बंधन का कारण है भोग की इच्छा। उसका एक बार त्याग कर देता व्यक्ति तो बनता नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। हाँ हाँ ओके। लेकिन प्रभु ऐसा ऐसा नियम क्यों है प्रभु कि अगर मैं पुण्य कर रहा हूँ तो मेरे इच्छा पर निर्भर है कि मैं पुण्य को भोगूं या ना भोगूं। तो मेरी इच्छा पे ऐसा क्यों नहीं निर्भर हो सकता मैं पाप कर रहा हूँ तो मैं भोगूं या ना भोगूं? ये भी तो ऐसा होना चाहिए प्रभु। नहीं, पाप में क्या है, पाप में आप वो तो पाप तो कोई नहीं भोगना चाहेगा। सिंपल चीज है, अगर आप गवर्नमेंट में है, मान लीजिए गवर्नमेंट आपको पुरस्कार देती है, तो आप बोल सकते हैं मुझे पुरस्कार चाहिए नहीं चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है कि तुमने ये गलती करी है, 2 महीने के लिए जेल होगी, तो गवर्नमेंट क्या छोड़ेगी आपको? बोले नहीं नहीं मेरी जेल जाने की इच्छा नहीं है। बोलिए तारकनाथ को। हरी बोल प्रभु, बहुत अच्छी हाँ? एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हाँ, तो वैसे ही है। तो पाप के लिए आप नहीं बच सकते, पुण्य से बच सकते। ठीक है, तो अभी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी भी पूछ रहा हूँ। तो ये क्लियर नहीं होगा तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगा, आप मेरी बदनामी करेंगे बाद में जाके, बाहर जाके। ठीक है, तो भी थोड़ा सा क्लियर हुआ अभी बहुत। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? 10 श्लोक में आ गए नाइन प्रभु, तक 9 हो गया श्लोक। था प्रभु, 9 तक नाइन हो हो गया था। गया था। ठीक है, देखिए 9 में मैंने वही समझाया था कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधना तदर्थम कर्म कौन्त्या मुक्त संग समाचर। तो वर्णाश्रम धर्म में जाने अनजाने में भगवान विष्णु केंद्र होते ही है। तो कई बार उसको पता नहीं होता कि वो कौन है, लेकिन वो व्यक्ति जो कर्मयोग कर रहा है वो अनजाने में क्या करता है, कृष्ण कर्म कर बैठता है। उसके कारण क्या होता है, हृदय उसका शुद्ध होता है। तो जब व्यक्ति भगवान ने जो आदेश दिए हैं, किसने, भगवान विष्णु ने क्या दिए हैं, वर्णाश्रम धर्म का में आदेश दिए कि आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। जब व्यक्ति वो करता है तो लोकोयम कर्म बंधना, तो कर्म का बंधन नहीं होता है, बल्कि तदर्थम मतलब वो जो भगवान है, भगवान विष्णु है, तदर्थम कर्म कौन थे, मुक्त समाचार, उससे व्यक्ति क्या होता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें भगवान क्या समझा रहे हैं, एक्टिविटी अपने आप में बांधने वाली नहीं है। किस पर्पस के लिए आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो व्यक्ति अगर उस भगवान की प्रसन्नता के लिए, जिसको शायद पता भी ना हो कौन है, उनके लिए जब कर्म करता है तो उससे मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म सारे बने ही हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अनजाने में भगवान विष्णु की सेवा करता है और उससे भी मुक्त हो जाता है। तो अनजाने में भगवान की सेवा करने में भी इतनी शक्ति है
कि वो कर्म बंधन से क्या करता है, व्यक्ति को मुक्त कर देता है। तो ये 9वें वाले अध्याय में 9वें वाले श्लोक में भगवान ने समझाया। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान अभी तो आप निष्काम कर्मयोगी के बारे में बता रहे हैं कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई कर्म बंधन से मुक्ति नहीं चाहता है और वो चाहता है कि नहीं नहीं मुझे तो अपना पुण्य भोगना है, तो जो व्यक्ति चाहता है कि वो पुण्य का फल को भोगे उसका क्या होगा? तो उसका क्या होगा भगवान 10 नंबर श्लोक से समझाते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एस वो अस्त इष्ट काम जो। पढ़िए इसको। कौन पढ़ रहा, कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। लोग पढ़े प्रभु। हाँ पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण बोल पढ़े। सृष्टि के प्रारंभ में हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े क्या? हाँ पढ़िए। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों की रचना और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने देवताओं और मनुष्यों को क्या बोला? मनुष्यों से बोला अगर आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ करने से क्या होगा? भगवान विष्णु को यज्ञ कहा जाता है। तो जो भी कर्म आप शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं तो किसकी वाणी को पूर्ण कर रहे हैं? भगवान विष्णु की वाणी को पूर्ण करना है। तो जब आप कोई कर्म कांडी यज्ञ भी करते हैं तो उसमें भगवान विष्णु की ही सेवा होती है, और जो सारे देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु के अंग हैं। इसलिए क्या होता है, उन तक उस यज्ञ का भाग पहुंचता है सारे देवताओं तक, और सारे देवताओं को तक जब वो भाग पहुंचता है तो देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और जब देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये आगे उस श्लोक में बताया जाएगा। तो देवताओं को क्या मिलता है? यज्ञ की आहुति मिलती है। मनुष्यों को क्या मिलता है? मनुष्यों को उनके जो भी जरूरत की चीज होती है वो मिलती है। जैसे इंद्रदेव जल की वर्षा करते हैं, चंद्र क्या करते हैं, औषधियों में रस डालते हैं, अग्निदेव अग्नि देते हैं, प्रकाश देते हैं। तो उस तरह से सारे देवी देवता क्या करते हैं, हमारे जरूरत की चीजें हमको देते हैं, और फिर हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो उस तरह से हम लोग खुश रहते हैं, और देवता क्योंकि यज्ञ की आहुति को ग्रहण करते हैं तो देवता लोग भी खुश रहते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने बताया कैसे आप दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। देवता भी खुश रह सकते हैं, मनुष्य भी खुश रह सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, बताया जा रहा है जो कर्म फल को भोगना चाहते हैं। कर्म चक्र से मुक्त होने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है। तो 11 नंबर, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेया परम अवाप्स्यथ। पढ़िए इसको। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो इसमें भगवान क्या समझा रहे हैं कि तुम क्या करोगे, तुम यज्ञ करोगे तो देवता लोगों को पोषण मिलेगा, और जब देवता लोग पोषण पाकर प्राप्त करके खुश हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो अन्न फल देंगे
आपको जो भी जरूरत की चीजें चाहिए वो आपको देंगे। तो ये भगवान फिर से क्या करते हैं, 12 में समझाते हैं। इष्टान भोगान ही यो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तेरे दत्तान अमृतायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। पढ़िए इसको। जीवन की विभिन्न, हरे कृष्ण, जीवन की विभिन्न, तो वो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था पिछला जो बताया ना आपने, हाँ। कि जैसे वो हम यज्ञ करते हैं, जो उसमें आहुति देते हैं, तो उसमें अपना अपना भाग सब ले लेते हैं। जैसे देवता लोग अपना भाग ले लेते हैं और प्रसन्न करके वर्षा करते हैं, या चंद्र देवता वनस्पति में मिठास देते हैं, तो और बाकी जो जीव है उनको फल मिल जाता है। ऐसे ही है ना प्रभु? हाँ ऐसे ही है। अभी अभी तो प्रभु फिर अभी जैसे अभी कलयुग की बात करें, अभी तो प्रभु यज्ञ होते नहीं है, तो फिर प्रभु देवता लोग कैसे प्रसन्न होते हैं? जैसे अभी यज्ञ तो नहीं होते एटलीस्ट, तो किस प्रोसेस से होता है प्रभु? अभी से तो कलयुग बारिश में, तो प्रभु अब भी होती है। तो कलयुग में जो देवता लोग हैं वो कैसे प्रसन्न होते हैं? वो हरिनाम करने से प्रसन्न होते हैं। तो जब भक्त लोग जप करते हैं, हरिनाम करते हैं, तो क्या होता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और सारे देवी देवता को भी भगवान के अंग हैं, तो वो हमको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं। मतलब अगर भक्त लोग जप करना बंद कर देंगे, हरिनाम लेना बंद कर देंगे, तो ये सारी चीजें भी बंद हो जाएंगी। ठीक है संजय बत्रा को? ठीक है, तो वो हरि नाम लेने से प्रभु हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, साथ में उसमें देवता लोग भी, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, वहां से उनको तुष्टि मिल जाती है। हाँ वैसे। ठीक है। प्रभु, लेकिन अभी कलयुग में हरिनाम तो बहुत कम लोग ही कर पा रहे हैं ना। हाँ तो अगर उतना भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जितने लोग कर रहे हैं उतना भी नहीं करेंगे। देखिए सब इस्कॉन वाले भक्त नहीं करते हैं, अन्य भी आप देखेंगे जो वाक्य लोग जो हैं, मान लीजिए अलग अलग और संप्रदाय के लोग हैं, तो वो लोग भी यज्ञ कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से देवता लोग हमको नेसेसिटीज दे रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कर्म योगी भी जो बाय डिफॉल्ट मतलब एक्टिविटीज के थ्रू ये कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं, तो उसका भी तो फल मिलता है। कोई फल मिलता है। मेन चीज क्या है कि अभी कर्मयोगी कम बचे हुए हैं, क्योंकि कर्मयोगी करने के लिए आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है, और वर्णाश्रम धर्म के पालन, वर्णाश्रम धर्म क्या होता है ये जानने वाले बहुत कम लोग हैं। यस। तो कुछ लोग हैं जो आप देखेंगे, लेकिन बहुत कम है, उनका परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन भक्त लोग भी हरिनाम कर रहे हैं पूरे विश्व में, इसलिए ऐसा हो रहा है। और हमको लग रहा है कि हम ही हरिनाम कर रहे हैं। अगर आप फॉरेन में जाएंगे, अमेरिका में बहुत जगह भी कीर्तन बेल्ट बोलते हैं उसको। कीर्तन बेल्ट का मतलब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे रोज डेली लोग शाम को बैठ के एक साथ कीर्तन करते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर है अमेरिका में। तो ऐसा नहीं सिर्फ भारत में हो रहा है, और वो लोग भक्त नहीं है, कई लोग उनको कीर्तन करने में आनंद आता है, इसलिए लोग कीर्तन करते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा चल रहा है। तो करोड़ों लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ तो ओके, तो अभी 12 नंबर पे आते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान अपराधायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। पढ़िए इसको। जीवन को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो इसमें भगवान क्या समझा रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग चीजें हैं, सामग्रियां हैं, वो कौन देता है? वो देवता लोग ही देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप क्या मोटर पार्ट्स की दुकान है, अब मोटर पार्ट्स के लिए आपको लोहा चाहिए, तो ये धातु कौन देता है? ये धातु भी देवताओं की कृपा से मिलती है। उस तरह से हवा जो हम ले रहे हैं, हवा का तो हम टैक्स नहीं देते हैं। सांस ले रहे हैं तो उसका भी वायुदेव देते हैं।
फिर जो हम लोग सूर्य की रोशनी ले रहे हैं उसका भी हम टैक्स नहीं देते हैं। तो गवर्नमेंट थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी देती है, हम उसका बिल पे करते हैं। वाटर डिपार्टमेंट थोड़ा सा पानी देता है, उसका हम लोग बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं। लेकिन बाकी देवता लोगों को तो टैक्स नहीं देते हैं। तो इसलिए जैसे गवर्नमेंट को अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको चोर कहेंगी गवर्नमेंट कि आपने टैक्स चोरी किया है। आप बोलेंगे अरे हमने तो कहीं से कोई चोरी नहीं किया है, बोले नहीं, आप बिजली पानी सबकी खपत कर रहे हैं और टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपको चोर कहा जाएगा। तो उसी तरह से भगवान क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति देवताओं की दी हुई सामग्री को मात्र ग्रहण करता रहता है किंतु उनको टैक्स नहीं देता, किसके रूप में, यज्ञ के रूप में, वो कौन कहलाता है, वो चोर कहलाता है। तो ऐसा जैसे चोर को दंड मिलता है, ऐसे व्यक्ति को भी प्रकृति के नियम उसको दंड देते हैं। तो इसीलिए पहले जमाने में लोग क्या करते थे, पंच यज्ञ करते थे, 5 तरह के यज्ञ, ताकि वो क्या कर सकें, वो देवताओं को प्रसन्न कर सकें और जो भी उनसे चीज ले रहे हैं उससे मुक्त हो सके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22 नंबर अध्याय और 141 नंबर श्लोक। तो ये इसमें 5 तरह के यज्ञ बताए गए हैं, पहले में आप देखेंगे। तीसरे से अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होम देवो बलिर होतो निर्यज्ञो अतिथि पूजनम। तो ये 5 तरह के यज्ञ हर गृहस्थ को करने पड़ते थे। तो जो भक्त नहीं है कम से कम उनको ये सब ग्रहण करने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं, जब कोई घी के द्वारा सुबह सुबह अग्निहोत्र करता है तो देवताओं का जो ऋण है, देवताओं से जो आपने सामग्री ली हुई है उस ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है सुबह सुबह अग्निहोत्र करके। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, ये शेयर नहीं किया ना मैंने अभी तक आपके साथ, 1 मिनट में शेयर करता हूँ। नहीं प्रभु जी। हाँ, अभी दिख रहा है ना सबको, तो ये दिया हुआ है कि घी के द्वारा अग्निहोत्र में जो व्यक्ति यज्ञ करता है उससे देवता लोग प्रसन्न होते हैं। तो पहले गृहस्थ लोग वो अग्निहोत्र किया करते थे, और उसका कारण क्या है, वो लोग यज्ञ करने के लिए काबिल इसलिए थे क्योंकि आप गुरु के पास जैसे जाते हैं गुरुकुल में, आपको जनेऊ दे दिया जाता है तो आप द्विज बन जाते हैं। द्विज बनने से आप क्या होता है, उसके बाद आप शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरु से कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, ड्यूटी वर्शिप कैसे करना चाहिए। तो फिर व्यक्ति यज्ञ सीखता है गुरुकुल में। आजकल लोगों के पास में वो जनेऊ रहते नहीं है, तो इसलिए वो यज्ञ करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन पहले लोग करते थे। तो अग्निहोत्र करने से कौन देवता लोग संतुष्ट होते हैं। वेदों का अध्ययन करने से व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ करता है, और ब्रह्म यज्ञ करने से जो पहले के ऋषि हुए हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके वेदों का सार दिया हुआ है वेदों में, तो उनके ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है। क्योंकि उन्होंने लिखा किसके लिए, हमारे लिए लिखा है, तो हम पढ़ेंगे तो हम लोग अपने ऋण से मुक्त होते हैं। उसी तरह से प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी हुई है, उसके ऋण से मुक्त होना है तो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो ये हो गया दूसरा ऋण। तीसरा ऋण हुआ पितरों के प्रति। पितरों ने क्योंकि हमको ये शरीर दिया है, हमको कुल धर्म दिया है, जाति धर्म दिया है, उससे अगर उससे ऋण से मुक्त होना है तो पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान करने से क्या होता है, व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, पितृ यज्ञ से। तो ये 5वां तीसरी तरह का यज्ञ है। चौथा जो यज्ञ है
उसको बोलते हैं भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मतलब जो भी हम अलग अलग प्राणियों से क्या करते हैं, उनसे मदद लेते हैं। जैसे लोग पहले बैलगाड़ी में जब चलाते थे तो बैल की सेवा ले लेते, गाय का दूध पिए थे तो गाय के प्रति ऋण है। फिर आप घोड़े को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तांगे में तो घोड़े के प्रति ऋण है, गधे से माल ढुलवा रहे हैं तो गधे के प्रति ऋण है। तो उस तरह से सारे जीवों के प्रति जो ऋण होता है वो क्या होता है, उन सबका सम्मान करने से और कृतज्ञता दिखाने से व्यक्ति भूत ऋण से मुक्त होता है, इसको बोलता है भूत यज्ञ। और जो 5वां यज्ञ होता है जो गृहस्थ लोग परफॉर्म कर रहे हैं इसको बोलते हैं निर्यज्ञ। निर्यज्ञ का मतलब क्या है, अलग अलग व्यक्तियों से, क्योंकि अलग अलग हम समाज में रहते हैं तो समाज में उन सब लोगों की वजह से ही हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। मान लीजिए जो शूद्र लोग हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर हम अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। या फिर जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर पाएगा। अगर कोई वैश्य है तो उसको ब्राह्मण से क्या लेना पड़ता है, उसको ब्राह्मण से शिक्षा मिलती है, यज्ञ वगैरह करने की विधि मिलती है, घर में हवन हो रहा है, कुछ हो रहा है तो ब्राह्मण की मदद मिलती है। क्षत्रिय हमको सुरक्षा प्रदान करता है, शूद्र लोग हमारा काम करते हैं। उस तरह से ये पूरी सोसाइटी में हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं। पर उस ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है जब निर्यज्ञ करता है। निर्यज्ञ कौन सा यज्ञ है, वो है गेस्ट रिसेप्शन। जब व्यक्ति अतिथि सत्कार ठीक से करता है तो उसको निर्यज्ञ कहते हैं। तो इस तरह से 5 तरह के जो यज्ञ होते हैं तो व्यक्ति उससे 5 तरह के जो कर्ज हैं उनसे मुक्त होता है, जो 5 लोगों के प्रति कर्ज है। ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एज ए एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये सब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी कोई अतिथि आएगा उसको लात मार के भगा देंगे हम जब कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, लेकिन करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल बोल। प्रभु जी 5वां नंबर जो नीड यज्ञ है उसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए। निर्यज्ञ मतलब जब हम समाज में रह रहे हैं तो समाज के प्रति एक ऋण है ना। अकेले हम होते तो अकेले हम कुछ काम कर पाते क्या, नहीं कर पाते ना, हम डिपेंडेंट है सब पे। तो उससे मुक्त होने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अतिथि सत्कार करता है ठीक से। अतिथि जब आते हैं, कोई भी अतिथि मतलब तिथि के बिना आता है, तो कोई भी आता है तो उसको आपको करना चाहिए, उसको बैठा के कम से कम उसको कोई आसन देना चाहिए, उसका मीठे शब्दों से उसका सत्कार करना चाहिए। फिर कोई बैठा हुआ है तो कुछ अगर खाने के लिए आप दे सकते हैं तो खाने के लिए देना चाहिए, नहीं है तो कम से कम पानी दीजिए उसको। तो इसको अतिथि सत्कार कहते हैं। तो ये भी एक यज्ञ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हाँ, भक्त को भी तो सब यज्ञ में सम्मिलित हो ही जाना पड़ता है। जैसे नीर यज्ञ है, भूत यज्ञ है, गुरु की जैसे अपने बुक्स पढ़ते हैं, वो सारे यज्ञ में तो भक्त भी सम्मिलित अपने आप ही हो जाता है। हाँ, तो आवश्यकता नहीं है लेकिन हो जाता है। मतलब नहीं होना चाहते हुए भी उसको होना पड़ता है। जैसे अपने बुक्स पढ़ते हैं गुरु की तो यज्ञ में शामिल होना ही पड़ता है। लेकिन भक्त, तो वही हम बता रहे हैं, भक्त के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भक्त करता है, करना पड़ता है। हरे कृष्ण। तो डिपेंडेंट नहीं है इस चीज पे, लेकिन उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 5 तरह के यज्ञ हैं। तो फिर आगे अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भूंगते तेति अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। पढ़िए इसको। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग को अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो 5 तरह के पाप होते हैं जो व्यक्ति जाने अनजाने में करता है। 5 तरह के पाप क्या है?
वो अनजाने में व्यक्ति हिंसा कर बैठता है। वो क्या, कौन कौन से हिंसा है? जब व्यक्ति खल-मूसर पहले हुआ करता था, जब हम लोग मसाले कूटते हैं ना, मसाले कूटते हैं या फिर आटा वगैरह निकालते हैं, आजकल चक्कियां आ गई हैं, उसमें भी जाने अनजाने में क्या हो जाता है, कई जीव मर जाते हैं। जब चक्की में से आटा निकाल रहे हैं या मसाले पिसवा रहे हैं, तो भले आप पैकेट में ले रहे हैं, लेकिन किसी ने तो पीसा होगा ना, किसी ने तो मसाला पीसा होगा, किसी ने आपका धान कूटा होगा या फिर आटा निकाला होगा, उसमें क्या होता है, पाप लगता है। तो वो पहले तरह का पाप है। दूसरे तरह का पाप है जब व्यक्ति चटनी वगैरह बनाता है, तो उसके लिए क्या, किसका, सिल्लोड़े का इस्तेमाल करता है, तो उसमें भी जाने अनजाने में कुछ जीव मर जाते हैं। ये दूसरा हुआ। तीसरा हुआ जब व्यक्ति भोजन पकाने के लिए क्या करता है, आग जलाता है, उस समय भी कोई ना कोई जीव जंतु मर जाते हैं। जब भी आप आग जलाते हैं तो जाने अनजाने में क्या होता है, उनकी भी हत्या हो जाती है। तो तीसरे तरह का पाप हुआ। चौथा, जब आप झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगाने में भी बहुत सारे जीव उसमें आ जाते हैं, तो वो चौथा तरह का पाप हुआ। पांचवा है जब व्यक्ति जल भरता है, पानी भरता है, तो आपकी सरकारी टंकी में जब पानी भरा जाता है तो हर बार तो कोई चेक करता नहीं है कि उसमें कौन जीव जंतु है कौन नहीं है, कभी कभी गलती हो जाती है। इस तरह बर्तन में भी कभी कभी कुछ जीव मर जाते हैं। तो इस तरह से 5 तरह के पाप व्यक्ति जाने अनजाने में कर ही देता है। उससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। तो अभी भक्त लोग तो क्या करते हैं, भक्त लोग जब भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो उससे 5 तरह के पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो भक्तों के लिए बहुत आसान है। पर जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, जो कर्मयोगी है और भक्ति नहीं कर रहा है, उसको एक यज्ञ करना पड़ता है। इसको बोलते हैं वैश्व देव यज्ञ। ये बहुत सारे मारवाड़ी लोग करते हैं पर उनको पता नहीं है। ठीक है, तो ये यज्ञ क्या है, ये मेरे घर में भी हुआ था, इसे मेरे को याद है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब दोपहर का भोजन बनता है पूरा, दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह सब बनता है, पूरा भोजन, तो वो क्या करते हैं, अग्नि को और देवताओं को भोग चढ़ाते हैं। आज भी लेडीज लोग, कई लोग करती हैं घर में, वो एज ए कल्चर करती है, उनको मालूम नहीं क्यों करती है। तो वो जो यज्ञ होता है उसको बोलते हैं वैश्व देव यज्ञ बोलते हैं। तो भोजन का आपने देखा, उसे कुछ हिस्से काट लेती हैं और उसको काट डालते हैं, अग्नि में डालते हैं, तो उसको वैश्व देव यज्ञ कहते हैं। तो इससे व्यक्ति क्या होता है, ये 5 तरह के पापों से मुक्त होता है। और भक्त लोग तो क्या करते हैं, भक्त लोग प्रसाद भी भगवान को अर्पित करके खाते हैं, तो उससे इस तरह के 5 तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी बताया, कोई क्वेश्चन है? ठीक हो, क्योंकि अगला जो श्लोक है ये 5 मिनट में कंप्लीट होंगे नहीं, वो साइकिल है पूरी, यज्ञ की साइकिल, तो उसमें कम से कम 15-20 मिनट लगेगा, तो इसलिए आगे हम नहीं ले सकते हैं। जो भी हमने आज डिस्कस किया उस पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, और नहीं है तो फिर हम लोग उसको यहीं विराम दे देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक सजेशन चाहिए कि कैसे हम लोग स्टडी करें, ताकि थोड़ा, वैसे सब समझ में आ रहा है लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे, कोई टेक्निक है जिसको फॉलो करें पढ़ने के समय? नोट्स बनाइए, नोट्स। जब मैं बोलता हूँ ना, तो सिर्फ कान में बोला के मत बैठिए, कॉपी और पेन लेके रखिए और उसको लिखते रहिए। और उसको जब आप किसी को बताएंगे ना, समझाएंगे, जिसको नहीं पता है, भले उसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप समझाइए, आपके समझने से आपकी समझ ज्यादा अच्छे से बढ़ेगी। तो जो श्रवण कर रहे हैं उसको नोट करिए और फिर कीर्तन करिए। कीर्तन मतलब किसी को समझाइए, तो ये बेस्ट तरीका है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु 12 नंबर श्लोक में है, 12 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है कि किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो यहाँ देवताओं का अर्थ क्या हुआ प्रभु?
देवता मतलब देवता, कौन देवता है? आपको देवताओं के नाम पता है? 33 करोड़ देव देवता है प्रभु। हाँ, देखो भाई, मारवाड़ी लोगों के तो को मारवाड़ी लोगों को सारे देवी देवता पता है, हमको मालूम है। तो देवी देवता तो आपको पता ही है ना। तो जो लोग देवी देवता से हम लोग जो चीजें लेते हैं, जैसे इंद्र जैसे पानी मिल रहा है हमको, चंद्रदेव से हमने बताया जैसे चंद्र की रोशनी से हमको औषधि मिलती है, औषधि को पोषण मिलता है। अग्निदेव से अग्नि मिलती है, वायुदेव से वायु मिल रही है। तो ये सब हमारी जरूरत है ना शरीर को बचाने के लिए। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको टैक्स के रूप में क्या करना चाहिए, आपको यज्ञ करना चाहिए। अगर टैक्स नहीं देंगे यज्ञ करके तो चोर कहलाएंगे। ठीक है। और हम लोग कृष्ण को जैसे दे रहे हैं, तो फिर हम लोग को ये देव देवता को देने का आवश्यकता नहीं है, अलग से देने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जब कर रही हैं या हरिनाम संकीर्तन कर रही हैं तो अपने आप देवी देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ओके प्रभु। ठीक है, तो हो गया। तो 14 नंबर के लिए अभी 2-3 मिनट काफी नहीं है, तो और हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज हम लोग यही विवरण देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। बात की प्रभु जी के लिए बस 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।